Hello and welcome to CD Deshmukh Competitive Exam Center, Thane. Today in this lecture, we will discuss about an important topic of Indian polity, which is the preamble. So let's understand what is the preamble of the Indian Constitution. Preamble को हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना भी बोलते हैं. Preamble क्या है? Preamble is the identity card of the Indian Constitution, and it was said by N.A. Palkhiwala, a legal expert, a legal luminary who fought the famous case of Keswanand Bharati case. Keswanand Bharati case has safeguarded the basic structure of the Indian Constitution, and basic structure of Indian Constitution is the doctrine which has saved India's democracy. So what is preamble? Preamble is the identity card of the Indian Constitution. For example, what is your identity card? If somebody will ask you, please introduce yourself, then what you will tell? My name is XYZ, I come from place ABC, my father's name, my mother's name, by date of birth. Instead of telling all these things, if you show your Aadhaar card, then that person does not need to ask anything else. जैसे आपका आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी क्या है? प्रियम्बल है. सो प्रियम्बल इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Preamble contains the summary, essence and philosophy of the Indian Constitution. Preamble also explains what was going on in the mind of the makers of our Constitution. For example, who were the makers of our Constitution? The members of Constituent Assembly. There was a drafting committee which was headed by Dr. B.R. Ambedkar ji. And again, this drafting committee has 7 members and you have to comment who are those 7 members. Then preamble is also called as the preface to the Constitution. Preface means जैसे आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे, there will be a preface before the content or after the content page. उस preface में लिखा होता है कि what is the matter contained inside this book. वैसे ही प्रियम्बल क्या है? प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रीफेस मतलब व्हाट इज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रियम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द समरी एंड इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर सर हम इतने बड़े बड़े फ्रेजेस यूज कर रहे हैं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कंटेन्स द समरी एंड इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑल्सो कंटेन्स the mind, what was going on in the mind of the makers of the constitution. Not only this, preamble is also the horoscope of the constitution. Horoscope means it contains the future of the constitution. Future में क्या है constitution में, या constitution का objective क्या है, what is the basic objective of the constitution. So let's read the text of the preamble. आपको text of the preamble को याद करना पड़ेगा. क्यों? डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं. For example, the preamble starts with we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. You can see here, we the people of India. This is the original text of the preamble, which starts with we the people of India. We the people of India solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all our citizens. क्या secure करना चाहते हैं? Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of our nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is the original text of the Constitution. Original text of the Constitution means how it is written. But again, what is the significance of the preamble? If somebody asks you what is the significance of the preamble, then use those phrases. For example, I have told you preamble is the identity card of the Constitution according to N.A. Palkhiwala. Not only this, it is the horoscope. Horoscope means it is the future of Indian Constitution. It contains what will be the future of Indian democracy. It contains what will be the future of Indian secularism as well. Not only this, it is a keynote to the Constitution according to Sir Ernest Barker, a British legal luminary. Not only this, we can also say preamble is a guiding light for judicial interpretation. Guiding light means जब भी जुडिशरी किसी भी केस में एग्जामिन कर रही होगी कि वेदर दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तो उस केस में फॉर एग्जांपल आपको जुडिशियल रिव्यू टर्म पता होगा. जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस वेयर जुडिशरी एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. जुडिशरी चेक करती है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, एंड while examining that constitutional validity of the law, preamble will be acting as a guiding light. कि preamble में जो चीज़ें लिखी गई हैं, preamble में जो objectives mentioned हैं, preamble में जो भी
ऑब्जेक्टिव्स या माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गो थ्रू कर रहा था, क्या उसको हम सेफ गार्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को बोलेगा तो आप ये सारे टर्म्स मेंशन कर सकते हैं। इट इज द समरी एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज ऑल्सो की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन according to Supreme Court and various legal expert. If preamble is so important, what is there in the preamble? हमने देखा टेक्स्ट ऑफ द preamble ये है, लेकिन preamble में है क्या? preamble contains 4 things. अगर आपसे कोई पूछे what is the significance of the preamble, use these phrases. But what is contained in the preamble? Preamble talks about 4 things. First, we the people of India. We the people of India is the first component of the preamble. First component of the preamble means, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही आप ये टेक्स्ट तैयार करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही लग जाएंगे। डायरेक्टली देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल एज वेल। वी द पीपल ऑफ इंडिया डील्स विथ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और वी कैन से द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिल रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है। इट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक्स अबाउट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया have given to ourselves this constitution. This constitution is not the gift of any foreign power. This constitution is not the gift of United States of America. This constitution is not the gift of British. This constitution has been prepared by Indians for themselves. So we the people of India explains source of authority of the constitution. Second, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सेकेंड आपको क्या बताता है प्रियम्बल? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट मतलब इंडिया का नेचर कैसा होगा? इंडिया का नेचर होगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इट मीन्स इंडिया जब भी होगा ये पांचों होगा। इंडिया सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सभी लेटर्स कैपिटल में लिखे गए हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और दैट टू विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। कोई भी कॉमा नहीं लगा है, कोई भी वर्ड सेपरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इन सब को हमने इंटीग्रेशन में देखना है, कॉम्बिनेशन में देखना है। ऐसा नहीं होगा इंडिया सॉवरेन तो होगा, सोशलिस्ट नहीं होगा, सोशलिस्ट तो होगा, सेकुलर नहीं होगा, सेकुलर तो होगा, डेमोक्रेटिक नहीं होगा। इंडिया जब भी होगा ये पांचों होगा। इंडिया सॉवरेन भी होगा, सोशलिस्ट भी होगा, सेकुलर भी होगा, डेमोक्रेटिक भी होगा और रिपब्लिक भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन मीन्स इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स डिसीजन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सकता है, यह है सॉवरेनिटी। फॉर एग्जांपल, वी विल नॉट इशू अ स्टेटमेंट ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस अकॉर्डिंग टू यूएस गाइडलाइंस। हमें जो स्टेटमेंट इशू करना होगा, वी विल गिव दैट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक एनी लॉ on internal matters as well as external matters on its own. So sovereignty lies in your independence to take decisions. Then there is socialist. What is socialist? Socialist philosophy is based on the concept of socialism. What is socialism? Karl Marx is called as the father of socialism. Socialism बात करता है समाजवाद की। Socialism क्या होता है? Socialism में जो स्टेट है, हमारे यहाँ का जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट अगेन द सोशलिस्ट मीन्स द स्टेट विल बी अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स स्टेट जो है वो पुअर एंड वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन का ध्यान रखेगा। दोज हु आर अंडर न्यूट्रिशन, दोज हु आर मेल नरिश्ड, दोज हु आर पुअर, दोज हु आर इन बैड कंडीशन, स्टेट विल ट्राई टू अपलिफ्ट देयर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, पावर्टी को रिमूव करना है या पावर्टी को रिड्यूस करना है, इरेडिकेट करना है, वो सभी डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द स्टेट। और वो स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट? DPSP, Directive Principles of State Policy, under Part 4 of the Indian Constitution, Article 36 to 51 establishes India as a welfare state। और जहाँ पर भी वेलफेयर स्टेट की बात आएगी वहाँ पे सोशलिस्ट फिलॉसफी आ जाएगी। तो इंडिया सॉवरेन है, क्यों? क्योंकि इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सकता है।
सोशलिस्ट है क्यों? इंडिया सोशलिस्ट भी है, यस इंडिया सोशलिस्ट क्यों है? बिकॉज इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जहां पे जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ के वल्नरेबल और वीकर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन का ध्यान रखती है। सेकुलर है क्या हम? यस वी आर सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है कि स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिलीजन्स नहीं है, इंडिया हैव ऑल द रिलीजन्स, बट इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सर प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट, आई विल कॉन्ट्राडिक्ट। व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? Islam. What is the state religion of Afghanistan? Islam. But if you ask me what is the state religion of India, there is no religion of India. State religion of India, all the religions are equally protected and promoted by the government. सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। दिस इज सेकुलरिज्म। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 to 28 अंडर फंडामेंटल राइट्स डील विथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड यू हैव द फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन। अगर आपको किसी भी रिलीजन को चूज करने की फ्रीडम है तो यू हैव द फ्रीडम टू स्टे अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल। आप किसी रिलीजन को फॉलो भी कर सकते हो, आप रिलीजन से दूर भी रह सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट भी है, हाँ इंडिया एक सेकुलर स्टेट भी है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है, यस। देन सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। क्या इंडिया डेमोक्रेटिक भी है? हाँ है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्न द पीपल, नॉट रूल द पीपल। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? गवर्न करते हैं लोगों को। गवर्न करना मतलब दे मेक द रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्कीम्स फॉर द पीपल। सो इंडिया में डेमोक्रेसी है, यस। देयर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगेन नॉट ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वी हैव द चॉइस टू चूज बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। So please remember, India एक democratic country है. Yes, India is a democratic country as well. Not only this, if we see, India is a republic country as well. Yes, India is a republic country as well. Why? Because head of the Indian state is not selected, he is elected. For example, who is the head of Indian state? President of India. President of India is the head of Indian state. और President of India जो होता है वो he is not the सिलेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन मोनार्की इज प्रिवेलेंट। मोनार्की है, मोनार्की का मतलब है वहां पे किंग और क्वीन का बेटा, डॉटर एंड सन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट और नेक्स्ट वी कैन से किंग और क्वीन। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट है ही इज इलेक्टेड, इफ यू रिमेंबर। देन वी हैव थर्ड कंपोनेंट एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो याद रखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर व्हाट? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है? कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू इंश्योर जस्टिस। जस्टिस कैसी मिलेगी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी होगी, यू विल हैव द लिबर्टी ऑफ thought, expression, belief, faith and worship. Then there will be equality of status and of opportunity. Fraternity, what is the meaning of fraternity? Fraternity means a sense of common brotherhood. We have not to promote enmity between the people. हमें लोगों के बीच में enmity प्रमोट नहीं करना है, communal hatred नहीं प्रमोट करना है। And the date of adoption, fourth is date of adoption. What is the date of adoption of our Indian Constitution? 26 November